Hello everyone, I am Shashibhushan Yadav and this is your channel Let's Enjoy Physics. So, in this lecture we are going to study about the image formation by convex mirror. बच्चों इसके पहले हम लोगों ने कॉनकेव मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन स्टडी कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करने जा रहे हैं. Now this is more simple than the concave mirror because the range in which the image is formed that is very small. And the cases are fewer, and as we proceed you will understand it very easily. So let me take the case first when the object is kept at infinity. तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो ऐसे केस में आपको पता है ऑब्जेक्ट at infinity, and in such case the light rays they will come parallel to the principal axis, that is they appear to come parallel to the principal axis. And we know that according to the rule of the drying images, the parallel beam of rays incident on the convex mirror, after reflection they appear to come from focus. So इधर मैं डॉटेड बनाता हूँ बेटा बिकॉज पीछे लाइट रेज एक्चुअली पहुंचती नहीं है, तो मैं हम लोगों को सबको यही करना है कि बिहाइंड द मिरर वी हैव टू ड्रॉ द डॉटेड लाइन्स to represent that they do not actually go there, so they appear to come from focus. Similarly, this ray will also appear to come from focus after reflection and will go this way. In the very same way, this ray itself after reflection will go back along the same path, so this appear to come from the focus also. In case that all the parallel beam of rays, even if we take below this principal axis, they all will appear to come from, suppose if we take one more ray here, so this will also appear to come from the focus. So they all appear to come from the focus. It means that when object is at infinity, the image that is formed at focus. अब बच्चों इस केस में देखिए होता है क्या, ये लाइट रेज तो डाइवर्ज हो रही है, वापस कभी मिलने ही वाली नहीं है, और जब कभी नहीं मिलने वाली तो they will not form images. So the virtual image is formed here. So this is the position of image and this will be virtual. Let us represent this image by I, okay, and this object at infinity. So now if we study the nature of the image formed in this case, the nature will be first virtual and it will be erect. Virtual images are erect and highly diminished, highly diminished. And if we talk about position, so at focus, at principal focus, or at focus, at principal focus. Good. This is about case number 1. Now let us assume the object somewhere between infinity and pole. इस pole और infinity के बीच में कहीं पे भी हम रख लेते हैं बच्चों, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. Let us say the head is A and the tail is B. So if I take a ray parallel to the principal axis, because we know that these are the convenient rays, after reflection it will appear to come from focus. We all know it very well. So it will go this way. That's clear. And if we take a ray, let us say on this pole, which we call oblique ray, that was the fourth case. So this will be angle of incidence, and in this case it will go back making the same angle. The angle has become little larger. It should be equal to the angle of incidence, so it should go this way. Now you can see very well, these two rays after reflection they will never meet again, isn't it? So what we will do, then we will produce them in the backward direction. तो ये तो पीछे देखिए फोकस से आ रही थी, इसको मैंने पीछे इधर प्रोड्यूस किया, मिरर से पीछे प्रोड्यूस करने पे ये यहाँ पे मिली है. क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है? नहीं, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट. अब यहाँ पे इसकी ये इमेज बन जाती है बेटा. देखिएगा कैसे, हेड से एक रे ये गई थी जो इधर चली गई थी, जो इधर से आती हुई दिख रही थी, दूसरी रे ये जो इधर चली गई थी जो यहाँ से आती हुई दिख रही थी. तो जो हेड से दोनों रेज हैं, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं बिहाइंड द मिरर, उसी पॉइंट पे इनका हेड बनेगा. तो ये हो गया हमारा ए डैश और ये हो गया बी डैश. तो आप बच्चों देख सकते हो नेचर में इमेज कैसी है, वर्चुअल है और डिमिनिश्ड है और सॉरी पहले इरेक्ट हम लिख लेते हैं बच्चों, रूल हमारा वही रहेगा, फॉलो करेंगे. सो इरेक्ट
इरेक्ट सीधा है, देखिए ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी ऊपर, और डिमिनिस्ड। And if we talk about position between focus and pole, so between focus and pole. अब बच्चों मैं आपको बताऊं, ये ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो, इस ऑब्जेक्ट को यहां भी आप रख लो, यहां रख लो, तब भी वही होने वाला है। अब अंतर क्या है बच्चों, देखो ये रे तो ऐसे चली जाएगी, एक यहां से रे जो मैं यहां कंसीडर करूंगा वो ऐसे जाएगी बच्चों, तो वो इधर मिलेगी। तो अंतर क्या आता है ये मैं आपको समझाता हूं। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज हमारा फोकस पे बना था, पॉइंट साइज बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, वर्चुअल बना था और इरेक्ट बना था। जब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पास लाते हैं तो इमेज अभी भी वर्चुअल बनती है, अभी भी इरेक्ट बनती है, अब फोकस और पोल के बीच में बढ़ती है। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाते हैं वैसे वैसे इमेज भी यहां मिरर के पास आती जाएगी। मींस ऑब्जेक्ट मिरर के जितना पास होगा इमेज भी इस मिरर के उतनी पास बनती है। इसीलिए जब आप इस स्पून को कॉन्वेक्स साइड को अपने पास रखा होगा तो जैसे जैसे उसको आप पास लेकर आए होंगे वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ती गई होगी। तो ये उसका आपका ऑब्जर्वेशन था। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। अब इस पे एक दो चीजें ध्यान रखनी। सपोज पीपल आस्क विच मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो ये कभी भी रियल नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज पूछता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स का रेंज क्या होता है इमेज फॉर्मेशन का, मतलब कितने रेंज में इमेजेस बनाते हैं। तो बेटा वो हमेशा इतनी ही रेंज में इमेज बनाता है, सिर्फ फोकस और पोल के बीच में, इसी के बीच में बनना है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा और जैसे जैसे इंफिनिटी से आप उसको मिरर की तरफ लेकर आएंगे वैसे वैसे इमेज भी उसका मिरर की तरफ बढ़ता जाता है और उसका साइज बढ़ता जाता है। ये स्टोरी है। इफ द इमेज इज very close to the pole, in that particular case you will get the larger image and also very close to the pole but on the other side. तो ये केस हो गया बेटा कॉन्वेक्स मिरर का। इस पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें जाननी थी आपको मैंने बताई। So what we have studied till now, let me tell you, we studied about the reflection, definition of reflection, the laws of reflection, we studied how images are formed, what makes things visible. We have studied also rules for drawing images and image formation by concave mirror, convex mirror. Now we will study the uses of concave mirror and convex mirror. तो हमारे नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इनके यूजेस पढ़ने वाले हैं। आप बहुत सारे यूजेस जानते भी हो लेकिन इनके यूजेस क्या हैं और क्यों इनको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज करते हैं ये पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको बता दूं असाइनमेंट भी हम इसमें लेकर आ रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स कवर्ड, जितने टॉपिक्स हमारे कवर होते जाएंगे उसके साथ साथ हम इसमें आपके लिए असाइनमेंट भी लेकर आएंगे। और आप वीडियोस अपने लेक्चर देखिए और उनसे आप अपने नोट्स बनाइए। एंड बिलीव मी इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है सीबीएसई बोर्ड में भी। यदि आपको ये लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे, आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आगे चलकर न्यूमेरिकल सेक्शन भी आने वाला है, सब आप देखेंगे बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक दिस physics as simple as possible. Now I request all of you कि along with this आप चाहे तो अपनी एनसीईआरटी किताब पढ़िए और देखिए। मैंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, उसमें हर चीज को कवर भी कर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, दिस इज इन वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आप लगे रहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वर्क फ्रॉम होम जैसे लोग कर रहे हैं वैसे आप वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम। थैंक यू।